Good, good morning, student. Today we will discuss uh, The Voice of the Rain. And this is a great poem written by Walt Whitman. Walt Whitman is also known as the American representative poet. Okay, and the theme of the poem is just the water cycle. This is the theme, and the poet wants to show that the source of the water. Okay, you tell the source of the water, what is the source of the water, and here we will come to know what the poet wanted to tell about the voice of the rain. Okay, in this poem the poet is talking to rain, and as well as rain is responding in a very queer, a very strange language. The rain is responding. Okay, and how the rain is responding, what the rain is saying, that has been translated by the poet Walt Whitman, that is American poet. Okay, you can see that. And who art thou? Art here means are. Art here means are. Who are thou? आप कौन है? Who are you? Okay. The poet is asking a question from the rain and saying, who are you? Said I to the soft falling star. Soft falling star in the sense, soft falling star का मतलब जैसे जो रेन जो हो रही है वो धीरे धीरे हो रही है, ड्रिजलिंग कर रही है. द रेन इज ड्रिजलिंग. दैट्स व्हाट द पोएट कॉल the falling of the rain, soft falling star. Soft falling star also is another name of the rain also. Okay, the poet said to the rain which has been falling on the earth in a very in a drizzling way, drizzle कर रही है. Okay, so which strange to tell gave me an answer. What I am saying to you, okay, that is a very strange thing, because the poet is trying to understand the language of the rain, and he is trying to translate the rain also. Okay, the answer that is given by the rain also he is translating it, and he translate the answer. Okay, gave me the answer as here translated. Whatever the rain has said, whatever the rain has said, the poet is translating in English. Okay, just see. I am the poem of the earth. The poet says that the rain is saying that the rain is here personified. Okay, the rain says that I am the poem of the earth, or you can understand that I am the soul of the earth. If I am not there, if water is not there, if rain is not there, the earth will not exist. Okay, said the voice of the rain. Eternal I rise. Eternal means always. Okay, it goes up always. Impalpable. Impalpable means something that cannot be touched, something that cannot be feel. Impalpable out of the land and the bottomless seas. जैसा कि आपको पता है कि रेन का सोर्स क्या है? समुंदर, नदियाँ, नाले. These are the source of the rain. So it is saying that I always rise from them. I always rise from the land, means the water that is collected on the land, whether in the form of pond, river, okay, or oceans, or you may say bottomless sea. इस फॉर्म में जो पानी जमीन पे जमा है, पृथ्वी पे जमा है, तो पोएट कह रहा है कि मैं ऊपर जाता हूँ, उन्हीं वेपर बन के वो ऊपर जाता है. Upward to heaven, where it goes to the heaven. Whence vaguely form, और वहाँ से from there, okay, when it goes up to the sky, from there vaguely means unclearly, you simply say form altogether change. वहाँ से उसका रूप जो होता है वो चेंज हो जाता है. Completely the form of water vapor has been changed and it turned into clouds. वहाँ से वो क्लाउड में कन्वर्ट हो जाता है. ऑल टुगेदर मीन्स कम्प्लीटली चेंज येट द सेम. अपोजिट फिगर ऑफ स्पीच यानी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन गिवन हियर. ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम. बदल तो जाता है, यानी कि आप देखो कंडेंस होके वो वेपर कंडेंस होके टर्न इनटू क्लाउड्स, लेकिन फिर भी अगर आप क्लाउड को टच करोगे तो आपके हाथ, आपकी बॉडी वेट हो जाएगी. इट मीन्स वाटर इज देयर. क्लाउड में कुछ नहीं, पानी ही होता है एक तरीके का अगर देखा जाए तो. आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, और फिर मैं नीचे आता हूँ रेन के रूप में. डिसेंड मीन्स कम डाउन,
टू ले मीन्स वॉश करना, नहलाने के लिए, जो चीज़ गंदी हो गई है या जिसमें धूल की लेयर पे लेयर जम गई हैं। तो आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, जैसे सूखा पड़ गया है तो वहाँ पे जैसे ज़मीन पे अर्थ पे जब सूखा पड़ जाता है, व्हेन द अर्थ नीड्स आई कम डाउन, एज सिंपल ऐसे समझ लो, इन द फॉर्म रे, और एटम्स लेयर्स ऑफ द ग्लोब, यानी कि जो ग्लोब की लेयर्स हैं उनको मैं वॉश आउट करती हूँ, यानी जो डस्ट वगैरह जो लेयर्स पे जमा हो जाती हैं अर्थ की ग्लोब पे, उसको मैं वॉश आउट करती हूँ जब मैं पृथ्वी पर आती हूँ। यानी कि उसका जो रेन का जो पर्पस है, इट हैज़ बीन मेकिंग इट क्लीन, अर्थ को क्लीन कर देती है, एंड अगेन इट गिव लाइफ टू द अर्थ ऑल्सो, एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स एलोन। अगर मैं इस पृथ्वी पर नहीं आती तो वो जो भी चीज़ें थी, यानी कि चाहे प्लांट्स हो गए, चाहे अर्थ हो गया, अर्थ में जितने भी सीड्स वगैरह है, ट्रीज़ वगैरह के, वो बीज ही बने रहते, वो ग्रो नहीं करते थे। यानी कि किसी पेड़ को डेवलप होने के लिए पानी चाहिए, तो इफ़ वाटर इज़ नॉट देयर तो दैट सीड इज नॉट गोइंग टू टर्न इनटू द प्लांट्स, तो सीड जो है वो प्लांट में टर्न नहीं होगी। लेटेंट अनबॉर्न, तो वो बीज जो है, वो प्लांट्स जो हैं वो कभी खिलते ही नहीं, कभी भी ग्रो ही नहीं करते। एंड फॉर एवर डे एंड नाइट, फॉर एवर डे बाय डे एंड नाइट, और हमेशा के लिए अगर देखा जाए बाय डे एंड नाइट, सुबह हो चाहे शाम हो, आई गिव बैक लाइफ टू माई ऑरिजिन। देखो रेन की ऑरिजिन क्या है, अर्थ। रेन की ऑरिजिन क्या है, टेल मी, अर्थ। अर्थ मीन्स द सोर्स ऑफ वाटर वेयर एवर इट एग्जिस्टेड ऑन अर्थ, चाहे वो सी हो गया, चाहे वो रिवर हो गया, तो दैट इज़ द सोर्स। ओके, तो चाहे लेक हो गई, तो अगर देखिए तो ऑरिजिन क्या है, द ऑरिजिन ऑफ द अर्थ इज रेन इज, सॉरी, द ऑरिजिन ऑफ द रेन इज अर्थ एंड इट इज़ गिविंग लाइफ टू द ऑरिजिन, यानी कि वो अर्थ से निकलती है और अर्थ को ही पुनर्जीवन यानी कि रिवाइव कर देती है, दोबारा से उसमें जान डाल देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई, जब बरसात होती है तो पूरा वेदर, पूरी अर्थ, पूरे पेड़, पूरी अर्थ साफ़ हो जाती है, सुथरी हो जाती है, प्यूरीफाई हो जाती है, क्लियर हो जाती है और फुल ऑफ ब्यूटी हो जाती है। ओके, देखने में सुंदर लगती है, हरी भरी हो जाती है। तो दैट्स व्हाई रेन इज गिविंग, आई एम गिविंग बैक लाइफ टू माई ओन ऑरिजिन, यानी कि अर्थ को ही मैं एक तरीके से नया जीवन देती हूँ। और पोएट इन समथिंग दैट इज रिटन इन ब्रैकेट, जो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है, तो हियर द पोएट इज कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑल्सो। ओके, सॉन्ग ऑफ द पोएट, तो पोएट इज कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑफ द पोएट, सॉन्ग ऑफ द पोएट विद दैट ऑफ अ रेन। तो पोएट अपने गानों को भी, या जितने भी पोएट्स जो अपने सॉन्ग्स लिखते हैं उनको भी किससे कंपेयर कर रहा है, रेन से कंपेयर कर रहा है। कैसे कंपेयर कर रहा है, कह रहा है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम बर्थ प्लेस, उसका जो गाने का जो बर्थ प्लेस है वो गला है, वो थ्रोट है, गले से ही गाना निकलता है। आफ्टर फुलफिलमेंट, यानी कि दूसरा व्यक्ति जब गाने को सुनता है, सिंगर जब गाना गाता है, दूसरा व्यक्ति जब गाने को सुनता है और उससे जब सेटिस्फाई हो जाता है, तो कह रहे हैं गाना गले से निकला, लेकिन दूसरे को सेटिस्फाई करने के बाद आफ्टर द फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग रेकंड एंड अनरेकंड टू द लव रिटर्न्स। अब वो धीरे धीरे क्या होता है बेटा, वहीं वापस चला जाता है। ठीक है, आप इसको चाहे थॉट करें, सोचें चाहे ना सोचें, लेकिन इट विल रिटर्न टू इट्स ऑरिजिन, द सॉन्ग विल रिटर्न टू इट्स ऑरिजिन, वो अपनी ऑरिजिन पे चला जाता है। तो पोएट हैज़ बीन कंपेयरिंग द सेम थिंग, ओके हियर, कि जिस तरीके से पृथ्वी पे रेन आके उसको एक तरीके से नया जीवन दे देती है, पृथ्वी से ही निकलती है, पृथ्वी में समा जाती है, उसी तरीके से पोएट के गाने भी पोएट के गले से निकलते हैं और पोएट के गले में ही समा जाते हैं लोगों को संतुष्ट करने के बाद। दिस इज द मैसेज दैट द पोएट वांट्स टू गिव। ओके, थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट टेल मी।